Good morning, students. Once again, we are going to start our series of videos started with your syllabus. As I want to give a piece of information to all of you that in grammar portion, your topic transformation is completed, and before it we have gone through narration and synthesis. Yes, narration, synthesis and transformation. Only one topic, syntax, is not going to be completed. We will start later after completing literature. As you know, in prose section all the chapters have been complete except the homecoming. So today we will start our left chapter, the chapter number 4, the homecoming. Students, as you know, the chapter is written by Rabindranath Tagore. So we will come to know about the writer. Rabindranath Tagore is very familiar name to all of you, as he is one of the greatest writer of Anglo-Indian literature. He belongs to 20th century, and Anglo-Indian literature means a group of poets, writers and novelists who devoted his literature, his writings in English. Although they belong in India, but they have written in English. And Rabindranath Tagore is really a great poet, writer, critic, novelist and dramatist. You can say no aspect of literature was untouched by Rabindranath Tagore. He was a famous novelist, he was a famous writer, he was a famous dramatist, and all the forms of prose and poetry have been touched by Rabindranath Tagore. This one, The Homecoming, is a story, from a story, a form of prose, a story written by Rabindranath Tagore. Tagore was a basically Bengali poet, and he has written in Bangla and English. And here he was born in 1861 and he died in 1941. And his writings were related with the social, all the aspects of social life, and patriotic feelings were also expressed through the poems and through the writing, through the stories and through the novel written by Rabindranath Tagore. As you know that he was a Nobel Prize winner, and he won Nobel Prize for his masterpiece work Gitanjali. As you know that your national anthem Jan Gan Man is also extracted from the great book Gitanjali. And now we will come to our chapter, The Homecoming. This one is a story related with a teenager. The story brings out the adolescent age, which is the stage of our human life, the boyhood stage of human life. Fatih is main character of the story. Fatih Chakravarti is a boy of 14 years old. He is a teenager, and by force of circumstances, he came to live in his maternal uncle's house. But every time he was desirous of returning of his own home. He remembers his village, he remembers his playmates, and he remembers his village life, etc. So how the story expresses the feeling of that teenager, Fatih Chakravarti. How was his life when he was in his village, and what differences came when he came his maternal uncle's home, and what was the pathetic end of the story. Okay, let us start our story, The Homecoming. Fatih Chakravarti was ringleader among the boys of the village. आप जानते हैं कि जो गांव का जीवन है वो बहुत ही मतलब फुल ऑफ इंजॉय होता है, नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं, और वहाँ जो लाइफ है वो स्वच्छंद होती है, जो फ्लो होता है जीवन का वो फोर्स नहीं होता। जो अर्बन लाइफ होती है वो आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ ले जाती है, और जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग होता है, लाइफ होता है, वो नेचुरल सराउंडिंग्स जो गांव में मिलती है वो नहीं मिलती। तो फटीक चक्रवर्ती 14 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट बॉय है जो पूरे उत्साह और उमंग से भरा अपना जीवन जीता है।
उसे किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो फटिक चक्रवर्ती जो है वो रिंग लीडर यू नो सरगना, मुखिया, चीफ ऑफ द ग्रुप, जो उसका प्लेमेट ग्रुप होता है, गांव के साथ में जो उसके गांव के दोस्त होते हैं उनका ग्रुप होता है, उन खेल संगी साथियों का वो मुखिया होता है, लीडर होता है। न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक दिन जब वो और उसके साथी नदी के किनारे खेल रहे होते हैं तो फटिक के माइंड में एक नई शैतानी आइडिया, शरारत जो है वो उसके दिमाग में आती है। क्या शरारत आती है? देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइन ऑन द मड फ्लैट। जो मड फ्लैट, मड मन कीचड़ और फ्लैट मन समतल होता है, यानी मार्शी प्लेस, दलदल वाला स्थान। नदी के किनारे जो गीली मिट्टी वाला स्थान होता है दैट इज कॉल्ड मार्शी प्लेस, दलदल वाला स्थान। तो वहाँ पर यानी जहाँ पे मार्शी प्लेस था, दलदल वाला था, वहाँ पे हैवी लॉग, एक हैवी भारी भरकम जो है वो लट्ठा लॉग, लकड़ी का जो पेड़ का जो तना होता है, जो सूखा पार्ट होता है, दैट वी कॉल लट्ठा इन हिंदी, लॉग इन इंग्लिश। तो एक भारी भरकम लट्ठा जो है वो नदी के किनारे उसी मार्शी प्लेस पे पड़ा हुआ था ऑफ द रिवर, वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर ए बोट। और किस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब किस बात के लिए पड़ा हुआ था? जो नाव बनाई जाती है उस नाव में जो मास्ट मतलब होता है मस्तूल का मतलब होता है जो बोट है उसका जो नीचे चपटा वाला भाग होता है, बोट बनी होती है, उसके किनारे शेप होते हैं, तो जो बोट का बेस बनता है, मस्तूल बनता है, उस पर्पस से उस लकड़ी के लट्ठे को वहां पर डाला गया होता है। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place. Decided निश्चय किया, डिसीजन लिया, शिफ्ट मीन्स चेंज, लॉग लगे लट्ठा, फोर्स यू नो ताकत, बल। तो he decided that they should all work together। उसने यानी फटिक ने ये डिसीजन लिया कि वो और उसके प्लेमेट्स मिल करके उस लट्ठे को, लॉग को जो है वो शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे उसकी प्लेस से, और फोर्स करके मतलब सभी लोग धक्का दे के, ताकत लगा करके उसको उसके प्लेस से शिफ्ट करेंगे। कहाँ ले जाएंगे? इस प्लेस, एंड रोल इट अवे, मतलब उसको अपने प्लेस से रोल कर देंगे, लुढ़का देंगे, और रोल करते हुए वो नदी की तरफ बह जाएगा, नदी में चला जाएगा। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। आइडिया ये था कि जब वो लॉग अपने प्लेस से मिसप्लेस हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पानी में, तो जब ओनर आएगा यानी उस लॉग का, उस लट्ठे का जो मालिक होगा, जिसको बोट बनानी होगी, वो आएगा और देखेगा कि उसका लॉग मिसप्लेस है, नहीं मिलेगा, तो वो एंग्री होगा, गुस्सा करेगा, और सरप्राइज भी होगा कि आखिर वो इतना भारी भरकम लट्ठा कहाँ चला गया। दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और जब वो अब ऐसा बिहेवियर करेगा, गुस्सा होगा, सरप्राइज होगा, तो उसको देख करके फटिक और उसके जो संगी साथी प्लेमेट्स हैं वो एंजॉय करेंगे, फन होगा, मजा लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। आइडिया फटिक का था, लेकिन सपोर्ट सारे उसके दोस्तों ने किया उसको कि हाँ ये मतलब सपोर्ट समर्थन दिया। सेकंड पर मतलब वो सेकेंडेड का मतलब होता है कि जो मेन आइडिया था, फर्स्ट आइडिया था, वो फटिक के माइंड में आया और बाकी उसके दोस्तों ने, नहीं सेकंड प्लेस पे बाकी दोस्तों ने उसको सपोर्ट किया उस प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव को। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली, और सर्वसम्मति से, अनएनिमसली मतलब विद ऑल ओपिनियन, सभी की सहायता से, सर्वसम्मति से उस कार्य को यानी उस फन को किया जाने का प्लान चॉक आउट हुआ। ओके, रेडी। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही वो फन जो लट्ठे को रोल करने वाला वर्क था, जिसमें एंजॉय होना था, जैसे ही वो वर्क शुरू होने वाला था, तो स्टार्ट, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, वो सेंटर्ड अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम। सेंटर्ड अप मतलब मस्ती करता हुआ, ऐसे ही मस्ती से घूमता हुआ आता है, मटर गश्ती करता हुआ, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और आ करके लट्ठे के ऊपर बैठ गया। जिस लट्ठे को वो लुढ़काने वाले थे, उस लट्ठे पे आकर लॉग पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले वो आया, और माखन आया और उसी लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड,
फटीक और उसके प्लेमेट्स ये देख करके पजल में सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए कि अरे ये अचानक से कहाँ आकर बैठ गए। ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज, जो ग्रुप में लड़के थे, दोस्त थे उसके फटीक के, उनमें से किसी एक ने टिमिडली मैंने बड़े ही धीमे कायरतापूर्वक, मतलब धक्का देकर नहीं, बड़े धीमे से उसको पुश किया, हटाया, हटाने की कोशिश की। एंड टोल्ड टू गेट अप, और कहा कि वो लॉक से उठ जाए। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो रिमेन माने बना रहा, मेंटेन बना रहा, क्वाइट अनकंसर्न, बिल्कुल अनजान। उसे लग नहीं रहा था कि ये बात उससे कही जा रही है कि उसको लॉक से हट जाना चाहिए। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वो उस लॉक पे ऐसे बैठा था जैसे कोई छोटा सा फिलोसफर, दार्शनिक, बड़े ही मेडिटेटिंग मोड, मतलब ध्यान अवस्था में, चिंतन अवस्था में बैठ करके मनन कर रहा हो, ध्यान में मग्न हो। किस बात की? ऑन द फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मीन्स वर्थलेसनेस, बेकार, कि ये जो फन है का जो आइडिया है, जो ये गेम है लॉक को शिफ्ट करने का, दैट वन इज यूजलेस, वो बिल्कुल बेकार है, इसको हटा देना चाहिए। और लेकिन ये बात वो ऐसे कह रहा, मतलब एक्सप्रेस कर रहा था कि मानो वो बहुत मेडिटेटिंग पोजीशन में है और किसी को उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फटीक वॉज फ्यूरियस, फटीक चूंकि आइडिया फटीक का था, दैट फटीक वॉज फ्यूरियस, फटीक बहुत क्रोधित था, गुस्से से, फुल ऑफ एंगर था। माखन, ही क्राइड, उसने गुस्से में चिल्लाया, माखन इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर इसी मिनट क्षण तुम यहाँ से उठ नहीं जाते, आई विल थ्रेश यू, थ्रेश माने कूटना, पीटना, मैं तुमको कूट दूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, हटने की बजाय माखन और आराम से बैठ गया और कंफर्टेबल जोन में बैठ गया, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। नाउ इफ फटीक वॉज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी, अब चूंकि प्लान फटीक का था और माखन उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा था, तो जाहिर सी बात है ये फटीक के जस्टिस का क्वेश्चन था, सवाल था। इफ फटीक वॉज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी, लीगल मीन्स रॉयल, राजसी, अगर फटीक को अपनी लीडरशिप बनाए रखनी थी तो अपनी इस रॉयल डिग्निटी को, अपनी ये शाही जो गौरव है, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस गौरव को, उस गरिमा को बनाए रखना था। बिफोर द पब्लिक, पब्लिक यानी उसके मित्रों की टोली में उसको अपना वर्चस्व बनाए रखने का अगर इरादा था तो इट वॉज क्लियर, बात बिल्कुल स्पष्ट थी, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसने जो थ्रेट माने धमकी दी थी कि मैं तुमको कूट दूंगा, उस धमकी को कैरी आउट भी करना था, मतलब करके भी दिखाना था। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका साहस डोल गया। क्यों? एट द क्राइसिस, इस जो क्राइसिस था माने क्लाइमेक्स है ना, जो संकट की घड़ी थी, ये जो पीक पॉइंट था उस पीरियड का, कि वो नहीं हट रहा था और उसे हटाया जाना था, उस पर उसकी हिम्मत जो है, साहस, उसका डेयर जो है वो जवाब दे दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new manners, उसका जो फर्टाइल, उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब यहाँ खेती से नहीं है, फर्टाइल मीन्स जो है अ न्यू आइडिया बॉर्न, उसका तुरंत ही अगर एक आइडिया उसको फ्लॉप हुआ कि माखन वहां से नहीं हट रहा था, तो एक न्यू मिस्चीवियसनेस, एक न्यू नॉटी थॉट जो है उसके माइंड में तुरंत क्रिएट हो गया। क्या था? रैपिडली, रैपिडली माने हर्डली, बड़ी तेजी से, शीघ्रता से, सीज्ड अपॉन, उसके ब्रेन में एक न्यू आइडिया, एक न्यू मिस्टीरियसनेस ने घेरा डाल दिया, मतलब कब्जा कर लिया या ओरिजिन हुआ। न्यू मैन्यूअर्स, एक न्यू ट्रिक, चाल, विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, एक नई चाल उसके माइंड में आ गई, फटीक के माइंड में, जो उसके भाई को डिस्कम्फर्ट मतलब परेशान कर, डिस्टर्ब कर सकती थी, परेशान कर सकती। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके जो फॉलोअर्स बने, जो प्लेमेट्स थे, उसके जो टोली के लोग थे, उनको भी आश्चर्यचकित कर देती, अमेज कर देती। और इसके साथ ही साथ अम्यूजमेंट माने मनोरंजन, रिक्रिएशन, और उनके जो फटीक का जो टोली है, दोस्तों का जो ग्रुप है, उनको भी एक नया मनोरंजन प्राप्त होगा। माखन ने ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉ,
अब उसने एक नई चीज क्या ऑर्डर करी अपने प्लेमेट्स को, अपने साथियों को, कि माखन को मत हटाओ बल्कि लॉग सहित यानी लटके सहित जो है माखन को रोल कर दो, लुढ़का दो। He gave the word of command to roll the log and माखन over together, कि माखन और लॉग दोनों को टुगेदर साथ साथ रोल कर दो, लुढ़का दो। भाई लट्टा जब रोल करेगा तो माखन अपने आप ही जो है अपनी प्लेस से हट जाएगा। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने भी इस ऑर्डर को सुना एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर। अब माखन के लिए भी ये चीज जो है वो इशू बन गया था, एक सम्मान का मुद्दा बन गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो स्टिक ऑन, कि वो उसी लॉक पे स्टिक चिपका है, बना रहे। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, अब माखन के लिए भी चूंकि ये प्रेस्टीज इशू हो गया था तो वो उस लॉक से हटने के लिए रेडी नहीं हुआ, मतलब डर के हटा नहीं। He overlooked the fact, उसने उस तथ्य को, उस ऑर्डर को ओवरलुक मतलब निग्लेक्ट किया। Like those who attempt earthly fame in other matters, उन मैच्योर बड़े लोगों की तरह जो अपनी अर्थली पोजीशन को पाने के लिए, अपनी फेम को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। एंड देयर वॉज पैरिल इन इट, जबकि इसमें पैरिल माने रिस्क होता है, खतरा होता है। हम बड़े लोग भी अपने अचीवमेंट में उन रिस्क को इग्नोर करते हैं जिसके पाने के लिए हम लोग ललायित होते हैं। तो इसी तरह से माखन जो है वो अपनी प्रेस्टीज इशू को बनाए रखने के लिए उस लॉक से हटने के लिए रेडी नहीं हुआ। द बॉय बिगेन टू हीव अ लॉक एट द लॉक विथ ऑल देयर माइट। उसके जो प्लेमेट्स थे, संगी साथी, खेल के साथी थे पटी के, उन्होंने माइट माने पावर, ताकत से, पूरी ताकत से उस लॉक को हीव माने जोर लगा के हटाना, जोर लगा के हटाना या उठाने की कोशिश की। कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए 1 2 3 गो, जैसे गेम शुरू होता है तो उसी तरह से उन सारे बच्चों ने उस लॉक को पुश करना शुरू किया। 1 2 3 गो, 1 2 3, और गो का मतलब लट्टे को धक्का मार दिया, शिफ्ट कर दिया। एट द वर्ड गो द लॉक देन, जैसे ही गो वर्ड आया वैसे ही लॉक जो है वो चला गया, लट्टा लुढ़क गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, और लट्टे के साथ ही माखन की जो फिलॉसफी यानी वो एक दार्शनिक की तरह जो मेडिटेटिंग पोजीशन में बैठा था, उसकी वो मेडिटेशन भी डिस्टर्ब हो गई, वो भी लुढ़क गया। ग्लोरी एंड ऑल, उसकी जो फिलॉसफी यानी दार्शनिकता थी और दर्शन था, और उसका जो ग्लोरी माने यश था, और सारी चीजें जो प्रेस्टीज इशू थी वो सारी की सारी लुढ़क गई, मतलब फाइनली माखन जो है जमीन पर गिर पड़ा। सो स्टूडेंट, today we have learned the story that the story is moves round about the main character Phatik Chakrabarti, who is young teenager of 14 years old, and this aspect of the story shows how freely he was living in his hometown. When he was in his village, he was leader of his playmates, and how naughty and mischievousness was a part of his life. This game with his playmates and with his younger brother Makhan shows that he was full of enthusiasm and full of freedom. He was enjoying his life in the ways. Okay, this is enough for today, and we will continue the story in our next video. Till then, have a nice day. हेलो बच्चों, मैं आपका भौतिक विज्ञान के टीचर प्रदीप शर्मा, कक्षा 12 की क्लास की आज से फिर से एक स्टार्टिंग हो रही है, और जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो बेटा परमाणु बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने अभी तक परमाणु के बारे में सुना था, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 की क्लास में आपने इसके बारे में छोटा सा शब्द सुना था, एक मॉडल सुना था जिसका नाम था डाल्टन का परमाणु मॉडल। ये बहुत पहले जो डाल्टन थे उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर बताया कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा और जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं एक ऐसा भी कण पाया जाता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु क्या है, तो परमाणु हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी सबसे छोटा कण है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये परमाणु की परिभाषा थी डाल्टन के अनुसार।
क्यों भाई? क्योंकि भाई तब जो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो सबसे छोटा जो कण था वो हमारे लिए क्या था? परमाणु था। ठीक है, यानी परमाणु की बात अगर करते हैं तो परमाणु ही वह न्यूनतम सबसे छोटा कण था उस समय के लिए, जिसको डाल्टन ने खोज के बताया था कि ये परमाणु है। और काफ़ी समय तक माना गया कि सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है। इनफैक्ट तब तक माना गया जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो गई। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो उसके बाद ये पता चल गया कि नहीं भाई, परमाणु से छोटे भी कण हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना है, और वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर कुछ समय बाद प्रोटॉन की खोज हुई। जब नाभिक की खोज हुई उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, और प्रोटॉन की खोज के बाद पता चल गया कि नहीं, नाभिक से भी मतलब परमाणु से छोटे भी और कण पाए गए, जिन्हें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया। आज के मॉडल में हम पुरानी बातें नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब तो हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 तक की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। आज आप इसे कक्षा 12 की क्लास में पढ़ने आ रहे हैं, और कक्षा 12 की जो आपकी क्लास है वो इन सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आज हम जो इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर है हमारे पास परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास जो मॉडल है, जहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया डाल्टन को छोड़ने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा रियल मॉडल पे आते हैं, और रियल मॉडल पे जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा किसका? भाई टॉमसन का, है ना। टॉमसन ने भी तो अपना एक परमाणु मॉडल दिया था, थोड़ा सा याद है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है। टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आधुनिक मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल, ये सारे हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इनके ड्रॉबैक पता हमें चेक करने हैं, यानी इनको हम आज यूज नहीं कर रहे हैं, इनको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं, उनकी बातों को हम बात करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग, जो टॉपिक है वो है टॉमसन का परमाणु मॉडल। यानी जे थॉमसन जो थे उन्होंने ये मॉडल दिया था, जिसका नाम भी उन्होंने रखा टॉमसन का परमाणु मॉडल। हिंदी में हम इन्हें टॉमसन बोलते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें थॉमसन भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, हिंदी में इन्हें हम टॉमसन बोल देते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें थॉमसन बोलते हैं। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनके अनुसार जो परमाणु मॉडल था उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल बताया उस पर उन्होंने वो जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था उससे कुछ बातें ली। जैसे डाल्टन के परमाणु मॉडल में बताया गया कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस कण है। ठीक है, एक ठोस कण है, यानी इसको हमने विभाजित नहीं किया। टॉमसन ने भी कहा कि नहीं भाई ठीक है, परमाणु सबसे छोटा कण है, इसे हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात तो कहाँ से मिल गई उन्हें? जे थॉमसन को ये मिल गई डाल्टन के परमाणु मॉडल से। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ बात बताई, जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज में इन्होंने पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो और दूसरी बात डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया गया तो इसे उदासीन करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही है, तो देखो इस बात को हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। तो टॉमसन ने भी अपने मॉडल में ये बताया कि परमाणु जो है वो एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या, परमाणु जो है वो एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। ठीक है, ये जो है वो एक ठोस गोला है, वो जो है वो क्या है? परमाणु है। ठीक, और इसके पूरे भाग में ये स्ट्रेचेज मैंने बना दिया है, इसका मतलब ये है कि इसके पूरे भाग में जो है वो धन आवेश जो है वो फैला हुआ है, वितरित है। तरबूज देखा है ना, अभी इसके मॉडल का भी नाम हम बताएंगे, तरबूज का मॉडल इसे कहा गया। तो इसके जो पूरे भाग में है वो धन आवेश जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ही फैला रहता है। ठीक है, यानी धन आवेश जो है वो इसके पूरे भाग में है। बात समझ रहे हो ना? तरबूज देखा है, तरबूज का जो लाल वाला पार्ट होता है, सपोज करो वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये है पूरा लाल वाला पार्ट, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये धन आवेश है। मतलब जो हमारे टॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो परमाणु होता है वो एक ठोस धन आवेशित गोला होता है। ठीक, इसके अंदर, ठीक है, अब इसी के अंदर तरबूज के जो बीज होते हैं ना, ध्यान से देखा है, तो इसी के अंदर तरबूज के बीज की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। ये हमको मॉडल बताया
ये अपने मॉडल में हमारे सामने बताया, किसने बताया? थॉमसन ने। ठीक है, यानी थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया? पहली बात कि जो परमाणु होता है वो एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है, जिसके पूरे भाग में जो धन आवेश होता है वो एक साथ वितरित होता है। इसके बीच बीच में ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? धसे होते हैं। ठीक है, और इन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश उतना ही होता है जितना परमाणु के अंदर कुल धन आवेश होता है। बात समझ में आ गई? यानी परमाणु के अंदर का जितना भी धन आवेश है उतना ही धन आवेश इनके भीतर उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश होता है। ठीक, तो अब भाई बताओ, सपोज करो इसके अंदर प्लस का 10e है तो इलेक्ट्रॉनों पर भी कितना होगा? फिर माइनस का 10e होगा। इस कारण जो होगा वो आपका परमाणु क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इस मॉडल को हम आज क्यों नहीं मानते हैं। तो देखो भैया, ये जो है वो इस तरह से तरबूज का एक पार्ट है। ठीक है, अब बताओ, हम आज के मॉडल में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा दे सकते हैं, यानी परमाणु को जब ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर अपनी कक्षा को छोड़कर जा सकते हैं, आयनित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ रखे हैं। इस मॉडल में आने के बाद हमको ऐसी कोई भी कहानी नहीं मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा पर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसी चीजें क्या आपको यहाँ से पता चल रही हैं? नहीं पता चल रही हैं। लेकिन जब तक कोई दूसरा मॉडल नहीं आया था तब तक तो ये चलता रहा बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया वैसे ही पता चल गया कि नहीं भाई, इस मॉडल में बहुत कमियां हैं, इस मॉडल को आगे फिर नहीं माना गया। तो उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जो बताएंगे। फिलहाल अभी बताते हैं कि अगर ये मॉडल सही था तो इस मॉडल से हम क्या क्या प्रूव कर सकते थे। देखिए, हमने अभी आपको पिछला एक चैप्टर पढ़ाया है जिसमें हमने पढ़ाया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया है। हाँ, तो ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव था इसमें हमें कक्षाओं से तो कोई मतलब नहीं था कि पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, नहीं भाई दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, या नाभिक से कोई इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं है। मान लिया कि नाभिक से या इस एटम से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ सकता है, ये निश्चित नहीं था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉडल की सहायता से हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं? हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो चैप्टर है हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि तापायनिक उत्सर्जन, जब हमने वो चैप्टर पढ़ाया था तो आपको हमने ये भी बताया था कि एक चैप्टर है तापायनिक उत्सर्जन, मतलब जब आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु को गर्म करने के बाद भी उससे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होता है और तब जो उत्सर्जन होता है उसे हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रकार के उत्सर्जन में भी हमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की कोई बात नहीं करनी है। तो इस टॉपिक से, इनके मॉडल से हम लोग तापायनिक उत्सर्जन की भी बात कर सकते हैं कि तापायनिक उत्सर्जन भी हम इस मॉडल की सहायता से प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक बार फिर इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो परमाणु है वो एक 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसके पूरे भाग में धन आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इनके बीच में ऋण आवेशित कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन उसी तरह से धसे रहते हैं जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं, और इन कुल ऋण इलेक्ट्रॉनों की या ऋण आवेशों की संख्या उतनी ही होती है जितनी परमाणु के अंदर कुल धन आवेश की होती है इनकी। ठीक है, इस मॉडल की सहायता से हम
प्रकाश, वैद्युत प्रभाव और तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या कर सकते हैं, जबकि हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की बात नहीं कर सकते हैं, हम नाभिक की बात नहीं कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आज के आधुनिक मॉडल की हम इनसे और कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो बहुत जल्दी से आप इसे पढ़िए, लिख कर पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय। Hello students, myself Anand Saini and your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपको कौन सा? तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या तरीका है, कैसे तत्वों का निष्कर्षण करना है, कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं इन इंग्लिश। आपको अच्छा ये बात आपको जो बताई जा रही है इस चैप्टर के बेहाफ पर आप ज्यादातर मोस्टली इस चैप्टर को जो समझते हैं, जानते हैं, जिस नाम से चैप्टर आपका है मेटलर्जी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिस्कशन करते हैं, वो बोलते हैं चैप्टर का नाम बोलते हैं मेटलर्जी। एक्चुअली मेटलर्जी एक टॉपिक है जो इस चैप्टर में आने वाला है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, वो ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो चैप्टर नहीं, वो उस मेटलर्जी वाले टॉपिक से ही आपका आता है। तो दैट्स व्हाई मेटलर्जी लोग ज्यादा यूज करते हैं चैप्टर का इतना बड़ा नाम लेने की अपेक्षा। अच्छा चलिए बात करते हैं मेटलर्जी। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। हम लोग लेकिन शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको पता है मेटलर्जी के बारे में। सबसे पहले जैसे अच्छा आपको एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स की बात करते हैं, धातुओं की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं। जो मेटल आप बड़ा इजीली समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, जैसे बात करते हैं सोने की, चांदी की, लोहे की, एल्यूमिनियम, कोई भी एलिमेंट जो आपको बड़ा इजीली दिखाई पड़ता है। आपने क्या करना होता है, जैसे लोहे का कोई सामान खरीदना है तो भाई आप शॉप पर जाते हैं, डायरेक्ट आपने पैसा दिया, खरीद लिया, चले आए। सोने का कुछ खरीदना है, ज्वेलरी वगैरह, चांदी का खरीदना है, एल्यूमिनियम का खरीदना है, तो आपको तो बड़ा इजी लगता है ना भाई। आपने पैसा खर्चा करना है, शॉपकीपर से लेकर के आए, यूज करने लगे। कभी ध्यान दिया कैसे ये मेटल मिलते हैं, एक्चुअली आते कहां से? क्या आपको पता है? आयरन की बात करते हैं, लोहे की अगर आप बात करते हो तो बेटा ये लोहा कितने इसका टफ मेथड होता है जब ये लोहा निकल के आता है। आपको अलग से कोई ऐसे जैसे आपको लोहा दिखाई पड़ता है, तो आपके सामने आपके घर में आप यूज कर रहे हो कुछ भी चीजें खरीदी गई लोहे की जो आपकी बनी हुई है, वो जो आप यूज कर रहे हो, क्या आपको पता है क्या ऐसे ही मिलता है क्या? नहीं, एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। आपको आयरन इस तरीके से थोड़ी दिखाई पड़ेगा जैसे आपको दिखाई पड़ता है। वो तो पूरा पूरा एक स्पेसिफिक पहाड़ है, पत्थर है, उसे काट के छोटे छोटे पार्ट से निकाल करके उसको जब अलग किया जाता है तब वहां से आपको लोहा मिलता है। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, जनरल सभी के साथ में यही केस है, चाहे वो आपका लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, सभी एलिमेंट्स की हम बात करें तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स मिलते हैं जो आपको इतना इजी लगता है। एक्चुअल वो इजी नहीं होता है, जो प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, वो प्रोसेस हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, बोर्ड एग्जाम के अलावा आप इस से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें आप अपना करियर कैसे बनाएंगे, तो कुछ बेसिक जानकारी आप अभी चैप्टर में पढ़िए। फिर आफ्टर 12 और भी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको एक करियर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको ये फील्ड मिल जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों के आवर्ती परिक्रम की बात करते हैं। क्या आपको पता है अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? टोटल नोन एलिमेंट्स कितने हैं? 118, 118। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। लेकिन जो परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व है वो ज्ञात नहीं है। प्रॉपर्टी ज्ञात है उसकी, IUPAC ने दे दिया गया है उसका, लेकिन तत्व ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी नोट में आपको 118 ही बताया जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि उसका IUPAC नेम है। भैया अगर किसी का नाम है सो इट्स ऑब्वियस कि वो नोट में ही आता है। दूसरी बात, 118 में से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो बाय नेचर मिलते हैं? आपको पता ही बात कितने हैं? 92। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, मेटल अलग, मेटलाइट्स अलग, नॉन मेटल अलग है ना, धातु 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 सब अलग अलग है। अच्छा, क्योंकि जब मेटलर्जी की बात आती है, चैप्टर की बात आती है, तो इस चैप्टर में हम लोग
केवल जो बात करते हैं वो बात किसकी करते हैं, धातुओं की करेंगे। किसकी करेंगे, धातुओं की। ठीक है, धातुओं के डिस्कशन का आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको धातुओं के लिए पढ़ना है डिस्कशन। हालांकि चैप्टर में आपको तब तो कहा गया, चैप्टर में आपको तब तो कहा गया कि आपका धातु सब आएगा, सभी के बारे में पढ़ना, सभी के सिद्धांत और प्रक्रम जानने हैं, समझने हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं किसका करेंगे, मैटर का करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बल्क एग्जामिनेशन। गॉट इट, छोटा सा पॉइंट है। तो टोटल तत्व कितने हैं, 118। इनमें से कितने ज्ञात होने का मतलब आपकी बात कही जा रही है, कितने आपके बाई नेचर आपको मिलते हैं, वो है 92। बाकी जितने हैं वो सब प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, कृत्रिम तत्व कहे जाते हैं। अब इसके बाद एक बात आती है कि जो तत्व हैं उन पृथ्वी पर हमें ये तत्व कैसे मिलते हैं। धातु धातु के रूप में तो वर्गीकरण आपको बताया गया है। पृथ्वी पर इनका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो सोर्स की जब बात आती है तत्वों के लिए, तत्वों का सोर्स क्या है, तो उसके लिए अर्ध क्रस्ट का ही नाम आता है। किसका नाम आएगा, अर्ध क्रस्ट, भूपर्वत। ठीक है, अर्ध क्रस्ट भूपर्वती पर आपको ये तत्व मिलते हैं, ये बात आप कहेंगे। अच्छा, और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बहुतायत में वर्ड यूज कर रहा हूं ना, सबसे अधिक मात्रा में तत्व में भूपर्वती से मिलते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। वो क्वेश्चन है आपका कि भूपर्वती पर, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु भूपर्वती पर पाई जाती है। ये आपका एसएससी में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और आपसे पॉलिटेक्निक एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, इधर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा है, एल्यूमीनियम। धातु की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमीनियम। अधातु की बात जब आती है तो अधातु में आपसे कहा जाता है ऑक्सीजन। ये 2 पॉइंट हो गए। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमीनियम, उसके बाद अधातु कौन सी, ऑक्सीजन। यहीं पर बात करेंगे भाई धातु में क्या होती है। आपको डेफिनेशन बताया, में चमक होती है, टुकड़े कितने पर पड़ते हैं, लाइट है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। अधातु के बारे में पता है, ऐसी कोई स्पेसिफिक चमक नहीं होती, भंगुरता नहीं पाई जाती है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, जल्दी धनायन बनाते हैं, जल्दी विनायन बनाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। उपधातु की बात कर रहे हैं, देखो ये चीजें आपको खुद से पढ़नी है, पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, धातु के बारे में, धातु के बारे में, उपधातु के बारे में वो डिस्कशन यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपने खुद से आपको डिस्कस करना है, पढ़ लेना है। अच्छा, धातु अधातु के बारे में पता चला, उपधातु क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो आपको उपधातु कहलाती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपके जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, धातु के बारे में, धातु के बारे में। तो धातु के बारे में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जा रही है, सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जा रही है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें से कितने मैन मेड हैं, कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, कितने बायोलॉजिकल मिल रहे हैं एलिमेंट्स कहां मिल रहे हैं, अभी तक आपने जान लिया है कि सब कुछ इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में धातु और धातु के बारे में जब आप जान चुके तो आप यहीं से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि भैया खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है, इनमें अंतर बताइए, इनके बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं। खनिज क्या होते हैं, खनिज धातु में पृथ्वी से जिस रूप में, ठीक है ना, धातु में पृथ्वी से जिस रूप में मिलती, चाहे वो डॉग के फॉर्म में मिले, चाहे वो सिर्फ अपना इंडिविजुअल मिले। जैसे चलिए अभी बात आई तो बता ही दे रहा हूं मैं, ऐसा इस बात में थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा आप कि जो धातुएं हैं वो हमें बाई अर्थ 2 तरीके से मिलती है। एक मिलती है मुक्त अवस्था में, दूसरी मिलती है संयुक्त अवस्था में। ठीक है ना, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था। सोना चांदी प्लैटिनम ये सब मुक्त अवस्था में मिलती है। संयुक्त अवस्था में जो वायु से CO2 से रिएक्ट कर जाता है, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अदर, है ना, तो जैसे आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो ये तो आपकी बात होगी कि एलिमेंट्स या धातुएं आपको 2 तरीके से मिल रही है, मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। अब हम बात करने जा रहे हैं खनिज और अयस्क की, और इसी का डेफिनेशन आप समझ लेना, आपको बात समझ में आए। खनिज क्या होते हैं, खनिज के लिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी से धातुएं हमें जिस अवस्था में प्राप्त होती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है ना, चाहे धातु मिले या उसका यौगिक मिले, पृथ्वी से हमें धातुएं जिस अवस्था में प्राप्त हो रही हैं
वो यौगिक के रूप में हो या संयुक्त अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, जिस अवस्था में प्राप्त हो रही है उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क, अयस्क के लिए कहा जाता है ऐसे खनिज जिनसे धातुएं कम खर्च में आसानी से निकाली जा सकती हैं, उनका निष्कर्षण किया जा सकता है, प्राप्त की जाती है, खर्चा कम होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, वो खनिज कहलाते हैं अयस्क। फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट समझिए। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और आसानी से होता है उन्हें कहते हैं क्या? अयस्क। पॉइंट क्लियर ना? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में आसानी से हो रहा है वो आप क्या कहलाते हैं? खनिज। तब यहाँ पर बात आती है, सभी खनिज अयस्क होते हैं या सभी अयस्क खनिज होते हैं? समझिए और बताइए। ये पॉइंट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्लास 10 से आपने पढ़ा होगा, तो बात समझिए। सभी जितने भी आपके अयस्क हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सीधा सीधा पॉइंट है कि जितने भी अयस्क होंगे वो क्या होंगे? खनिज होंगे। जितने अयस्क सब खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारे खनिज से धातु मिल सकती है, लेकिन आसानी से मिले, कम खर्च में मिले, ये जरूरी है। जिनसे कम खर्च में, जिन खनिजों से कम खर्च में आसानी से धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क कहते हैं। इसलिए पॉइंट आपका ये सही है कि जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज हैं, लेकिन जितने खनिज हैं वो सब अयस्क हैं। ये सही है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा। आज के लिए थैंक यू।